yes, having the means I have been using the Spider software from past 7 years, and in each and every aspect, I keep on receiving a very fast and immediate responses from the support team to guide us to help me to understand how to utilize the best. Even though means having using this trading software for many of years, I have not been using it at this but based on my understanding over the period of time, there are certain kinds of things that I have developed and some sorts of features of the Spider software that I am able to use very extensively. And it helps me to not to do just a chatting part, but help me to understand that what are the niche sector of the market is moving. First of all, very thank you for the kind introduction, but I like to reintroduce myself as a trader. So, what kind of a trader I am and what I am going to deliver, it will set some sorts of a basic stone for the session. So, there are, means, let's say, can I ask one question? How many cricket formats that we have? How many cricket formats that we are having? So give me a minute. They haven't replied. As soon as they reply, I'll update you. So we can say that there is a T20, there is a one day, and there is a test match, right? So three kinds of the formats of the crickets that we have. So similar kind of a thing, we have a formats in the trading as well. So let's say there is an intraday trading, there is a swing and positional, and then there is a investment. So what kind of a player I am? So I am neither at the extremes. I am not a hardcore intraday trader, and I am not like a long-term investor which follows the theory of yes, there are a couple of months to the quarters, and maybe even years around I have my holding period. So basically, I am a one-day player, or in the context of the market, I can say that I am a swing and positional trader, where varies, my holding horizon varies from the couple of months to quarters, and maybe more than that. So what I realize is that okay, when you are a short-term trader, your Nifty movement matters a lot. Means you have to align yourself with the Nifty. Okay, what kind of the Nifty momentum that where the Nifty is shaping up, where the Nifty is moving accordingly, you take to your trades. As far as the investment is concerned, you are concerned about the bottom-up approach. You are concerned about the stocks fundamentals, the stocks individual strength, the stocks individual's mood. So this is what we are concerned with. But me, which is as between in between of these two extremes, I am more concerned about the sector part. Okay, which particular sectors are moving, which particular sectors are not moving, which particular sectors are the flavor of the market, not the flavor of the market. That has been my core, or that is what my core of interest to evaluate that this is what kind of the sectors are moving and what kind of sectors are not moving. So here, what I do is that there are two things that I have been using. There is a feature in the Spider software that is a report designer. So just wanted to ask you, how many of you are using the report designer, and specifically what are the things that you are using in a report designer? Can you tell me? Then I disclose my task, what I am utilizing from the report designer. There are many participants are there, so I expect a good amount of the responses. Yes, sir. They have been responding, sir. Swing, bata rahe. The earlier question that you asked about the cricketer, they've been saying three. Oh, oh. Okay. So yes. So swing is the one of the feature that you are using. Unfortunately, I am not able to see your questions directly. So Priyanka, ma'am, you have to act as a moderator between us. I know, sir. Can we also see if you can check the chat box? Can you access the chat box, sir? Then I can Yes. ask everybody to write on the chat box. Yeah, because I have opened my chat box. My chat box Okay, can is I request the audience to write in the chat box so that the presenter can reply personally to your queries instead of the question box? right. Fine. Perfect. Wonderful. Thank you. So yes. So basically, what I did is that there are certain kind of the two things that I have been using. One is my own Excel sheet model that I have created, and then to feed that particular Excel sheet, I use the spiders
report designer format in that. So I just show you my overall journey that how this particular associate in the report designer helped me to understand the thing in the market. So what are the kind of flavors in the market? So here see, means I'm going to ask a lots of questions. Means yes, I am a technical analyst, I am a trader, but besides that, I am into the education profile as well. So yes, as an education analyst, I love to ask the questions to see that what's your responses are there, right? So yes, the very first question over here, the poll also I wanted to raise. What do you feel? With what kind of the sector is the flavor of the market right now? Okay, there is the one request that okay, can I speak in Hindi as well? So I am comfortable as far as all the participants are comfortable. Bilkul. Or even though I will enjoy your sessions more in delivering the Hindi rather than the English. Yes, so there is a one poll that we have raised. So can you participate in that poll? What do you feel? Which sector is moving right now? Which is the sector outperforming? Whether it is an IT, FMCG, cement, chemical. What do you see? What do you sense? उससे बेसिक थिंग कि क्या आपको लग रहा है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है बिकॉज एज आई सेड दैट कि जब भी आप मीडियम टर्म ट्रेडर होते हो ना तो तभी सेक्टर का क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है सब कुछ ऊपर नहीं जाता है मार्केट जब भी नीचे आता है तो सब कुछ सेम इंटेंसिटी से नीचे नहीं आता है तो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आपको एक सेक्टर की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए होती है कि कौन सा सेक्टर फ्लेवर में है कौन सा सेक्टर फ्लेवर में नहीं है और आज का जो स्पाइडर का टीम का जो एफर्ट्स था वो यही है कि आई कैन कन्वे अ थिंग कि सेक्टर को एनालाइज कैसे कर सकते हैं नॉट जस्ट चार्ट को देख के देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्टिंग नॉर्मली हम एज अ सिनोनिमोलॉजी यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्टिंग एक ही चीज है बट नो चार्टिंग इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ी चीज है उसके अंदर एक चार्टिंग का पार्ट आता है तो जब भी हम चार्टिंग पे आते हैं तो उसके पहले हमारा बहुत कुछ होमवर्क होना चाहिए होता है लेट्स से इफ आई जस्ट शेयर वन ऑफ माय प्रेजेंटेशन दैट आई डिलीवर व्हाई आई एम सेइंग दिस क्योंकि इट मैटर्स अ लॉट so basically this is the educational sessions I will be using some sort of a references point but there is no any such kind of the selling kind of things it is just for the educational purpose right. So what I see is that it means when we are doing some sorts of analysis, we directly jump on the chart. So we find this is what the chart is all about. हमने chart का support देखा, resistance देखा, trend देखा. We do a certain kind of things. But then there are the lots of important things that we need to do. कि आपको पूरा जो मार्केट एनालिसिस होता है इसको तीन हिस्सों में हमें बाइफरकेट करना होता है. So before you do the charting, तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि what is the broader texture of the market. मार्केट का रुझान अभी क्या है मार्केट के रुझान के बाद में आपका स्ट्रेंथ एनालिसिस कि कौन से सेक्टर में आपकी स्ट्रेंथ रही हुई है प्राइस परफॉर्मेंस वाइज रेशियो चार्ट वाइज सीजनलिटी वाइज तो ये सारी कुछ ना कुछ चीजें होती है जो हमें एक तो प्री माइंड करवाती है कि हमें कौन सा चार्ट पे एनालिसिस करना चाहिए बिलीव मी मार्केट में कहते हैं ना कि व्हाट डू यू इन्वेस्ट इन मार्केट मार्केट में हम इन्वेस्ट क्या करते हैं इफ यू फील दैट कि हम मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं यू आर रॉन्ग इसके अलावा भी हम बहुत कुछ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं राइट यू इन्वेस्ट योर टाइम यू इन्वेस्ट योर एनर्जी वी इन्वेस्ट आवर मनी एज वेल तो ये तीनों की तीनों चीजें ऑप्टिमाइज लेवल पे रहनी चाहिए राइट तो तीनों की तीनों चीजें ऑप्टिमाइज वे में हमें यूज करनी चाहिए सो तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रैंडमली चार्ट एनालिसिस करो कि हाँ टीवी पे कुछ स्टॉक के नाम चल रहे हैं या फिर आपने कुछ सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा एंड यू हैव योर ओन थॉट कि हाँ ये स्टॉक पे एनालिसिस करना चाहिए आउट ऑफ द इंट्यूशन काइंड ऑफ तो वैसा नहीं होता देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ वेरी फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस फाइन लेट्स से कि अभी फाइनेंशियल मार्केट चल रहा है राइट बट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी बहुत सारे आपके कंपोनेंट्स आते हैं तो लेट्स से कि आपका बैंकिंग आ जाता है तो बैंकिंग में आपके तीन कंपोनेंट्स आते हैं तो लेट्स से कि आपकी प्राइवेट बैंक होता है आपका पब्लिक बैंक होता है आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होता है लेट्स से कि कैपिटल मार्केट है तो कैपिटल मार्केट आपका चल रहा है लेकिन कैपिटल मार्केट के अंदर भी आपके काफी सारे सब क्लासिफिकेशन है लेट्स से कि आपका कैपिटल मार्केट आ जाएगा आपका
एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ जाएगी, आपकी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आ जाएगा, डिपॉजिटरीज आ राइट, कंपनीज आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, तो वहां पे भी आपके हाउसिंग फाइनेंस आ जाता है, आपके एनबीएफसी आ जाते हैं, आपके माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। फाइनेंस में आपका फिर से एक इंश्योरेंस सेगमेंट होता है, तो इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर भी आपका लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है, जनरल इंश्योरेंस। तो कहने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर आपका चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी ये काफी सारी चीजें आपकी होती हैं। तो वो कैसे अंडरस्टैंड करें कि कौन सा सब सेक्ट मूवमेंट में है। Believe me, understanding the thing कि financial market चल रहा है, it is very much easier to do, but उसके अंदर के जो components है उसको हमें कैसे क्लासिफाई करना होता है। तो मैंने अपना एक एक्सरसाइज क्या किया हुआ था, लेट्स से कि एनएससी ने क्या किया हुआ है कि कोई भी एक स्टॉक होता है उसको चार ब्रॉडर वे में उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। तो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। एक यहाँ पे वेबसाइट है, सो लेट्स से दैट इज द लेट्स से निफ्टी इंडेक्स। निफ्टी इंडेक्सेस करके एक वेबसाइट है। ओके, नाउ आई वाज एबल टू सी। ओके, मैं जब भी अपना कैमरा ऑफ करता हूँ, ओके फाइन, तो आई वाज एबल टू गेट द ग्लिम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स पोल। द मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स से दैट आईटी अच्छा चल रहा है, केमिकल्स अच्छे चल रहे हैं। ओके फाइन, नाइस, थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। निफ्टी इंडेक्सेस। तो निफ्टी इंडेक्सेस में क्या है कि निफ्टी इंडेक्सेस का मैं यहाँ पे वेबसाइट में आता हूँ, आई जस्ट क्लिक ओवर हियर, इट जस्ट गिव यू दैट के मार्केट एनएससी ने पूरी मार्केट को कैसे सब सेग्रीगेट किया हुआ है। तो हियर आई कम टू लेट्स से आई थिंक दिस इज द इंडेक्स डैशबोर्ड। ओके, इंडेक्स क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी दैट कि एनएससी हैज स्ट्रक्चर्ड द क्लासिफिकेशंस इन द फोर टियर स्ट्रक्चर। ब्रीफ ऑफ आर और फोर स्ट्रक्चर में उन्होंने दिया हुआ है। एक तो मैक्रो लेवल, द इंडिकेटर्स द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कंपनी एट अ मैक्रो लेवल। बाद में आपका सेक्टर आता है, बाद में आपका इंडस्ट्री आता है, बाद में आपका बेसिक इंडस्ट्री आता है, राइट। ओके फाइन, नाउ इफ आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि लेट्स से कि अपोलो टायर, अपोलो टायर कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है? अपोलो टायर कौन से सेगमेंट से बिलोंग करता है? कैन यू, इफ यू पुट योर आंसर्स इन अ चैट, आई विल बी एबल टू सी डायरेक्टली एंड रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पर्सन एज वेल। अपोलो टायर्स, वेरी बेसिक क्वेश्चन, आई नो दैट कि जो स्पाइडर के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सो आई बिलीव दैट यू आर ऑलमोस्ट very deeply into the market, then only you have gone with the spider. So but just wanted to understand that कि अपोलो टायर्स कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? कैन यू टेल मी? Yes, sir. A lot of people are riding automobiles, tires, sector. ओके फाइन। तो यहाँ पे मीन्स लेट्स से कि आपने बताया कि ये ऑटोमोबाइल से बिलोंग करता है, आपका टायर से बिलोंग करता है, राइट। चार स्ट्रक्चर में से आपने दो स्ट्रक्चर का आंसर काफी ठीक से, काफी अच्छी तरह से दिया हुआ है। नाउ इफ यू वांटेड टू सी दैट कि एनएससी ने अपोलो टायर्स को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, तो लेट्स से मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ अभी। आई टाइप द अपोलो टायर, ये रहा अपोलो टायर्स, एंड विद इन द अपोलो टायर्स यहाँ पे बेसिक इंडस्ट्रीज में आपका एक यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आपका एक आई बटन दिया हुआ है। तो ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले ऑटो टायर है, वो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है कि आपके पास, मेरे पास पैसा होता है तो मैं कार खरीदूंगा, मैं अपने टायर को रिप्लेस कराऊंगा। अगर पैसों की कमी होती है तो मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगा। इट इज अ डिस्क्रिशनरी, ये स्टेपल नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है। तो दैट इज व्हाट आई मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे टायर, जो अपोलो टायर है वो आपके कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आता है। उसके बाद में जो आपका सेक्टर होता है, सो दैट इज व्हाट एन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में आता है। उसके बाद में आता है इंडस्ट्री लेवल, वो आपका ऑटो कंपोनेंट्स में है। उसके बाद में आपका बेसिक इंडस्ट्री लेवल पे आपका ये 10%
एक ही पन्ने स्टॉक के ये 4 क्लासिफिकेशन हो गए। मैंने अपना एक्सेल शीट में जो बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड एंड अगेन आई एम रीइटरेटिंग और हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग कि मेरा सबसे पहला पर्सपेक्टिव एजेंडा यही होता है कि मुझे मार्केट की मूवमेंट समझ में आए, मार्केट का सेक्टर समझ में आए कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि लेट्स से कि मैंने अपना एक काफी सारे मल्टीपल चीजों के बेसिस पे मैंने कुछ ना कुछ फॉर्मेट्स अपने बनाए हुए हैं। लेट्स से प्राइस के बेसिस पे, पिवोट लेवल के बेसिस पे, मूविंग एवरेज के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, एंड स्टिल द जर्नी इज गोइंग ऑन। कि कुछ ना कुछ चीजों को मैं अभी अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहता हूँ। तो द वे आई आस्क दैट कि अपोलो टायर्स मैंने आपको पूछा था, तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं अपना अपोलो टायर्स डालता हूँ। ये मेरी जो एक्सेल शीट मैंने बनाई हुई है, ओके फाइन, सो दिस इज व्हाट द अपोलो टायर्स। तो जिस हिसाब से वहां पे एनएससी की वेबसाइट में दिया हुआ था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलो टायर्स मेरा लार्ज कैप मिड कैप 250 से बिलोंग करता है। उसके बाद में एट अ मैक्रो लेवल वो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी है, एट अ सेक्टर वो ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स है, एट अ इंडस्ट्री लेवल वो ऑटो कंपोनेंट्स है, और उसके बाद में वो टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स। तो ये सभी हम काफी इजीली समझ पाते हैं कि भाई ऑटो सेक्टर चल रहा है, लेकिन ऑटो सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है, क्या आपके टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स चल रहे हैं, क्या आपके एलसीवीज एफसीवीज चल रहे हैं, क्या आपके कमर्शियल व्हीकल चल रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले व्हीकल्स चल रहे हैं, या फिर आपके ऑटो कंपोनेंट्स चल रहे हैं, या फिर आपके टायर्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है। तो ये एक बेसिक कहते हैं कि थोड़ा सा डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बननी चाहिए होती है। तो यहाँ पे बेसिकली वहां पे पूरा मॉडल एक बनाया हुआ है, और इसका इनपुट मैं रिपोर्ट डिजाइनर से लेता हूँ। आई एम अ चार्टिस्ट, मैं टेक्निकल एनालिसिस हूँ। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कैन एनीवन गैस कि कोई एक ट्रेडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है फ्रॉम द एनालिसिस परस्पेक्टिव। आई रिपीट माई क्वेश्चन, एज अ ट्रेडर या फिर जब हम स्पाइडर का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो क्या एक सेंस बनता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है व्हेन यू एनालाइज द So we have the audience writing price action, price. प्राइस, प्राइस। तो इन गुजराती it says that कि भाव भगवान है। तो फॉर मी that has become the कहते हैं ना कि एक टैग बन गया है, be it in my professional life or be in my personal life as well. In professional life, let's say हम stock market में तो भाव भगवान है, तो price is the move that are happening, so that is what the move is that. In my personal life, again the भाव भगवान है, so in Gujarati the भाव we also connect it with an emotion. तो हमारे लिए इमोशंस मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, so that's why I was saying that कि भाव भगवान है, so price in the context of our profession generally matters a lot. तो मैंने ये मॉडल मेरा प्राइस के बेसिस पे ही बनाया हुआ है, राइट। अभी कौन सा ऐसा मैं इंडिकेटर को चूज करता हूँ जो प्योर प्राइस एक्शन या फिर प्राइस के मूवमेंट को हाईलाइट करता है। So there is one indicator that I use. So I request to raise a call from the participants. I wanted to know that when I say the ROC, so what comes to your mind? Can you raise a call? ROC. जब ये आरोस में आपको कहता हूँ व्हाट कम्स टू योर माइंड, सो देयर इज वन पोल दैट इज गेटिंग इनिशिएटेड, तो लेट मी नो योर थॉट कि आप क्या समझते हो आरओसी को सुन के। Okay, I am able to see that 57% of the participants say that the ROC is a rate of change, and 47% of the participants are able to say that it is a return on capital. Fine. So yes, we are into a spider software program. We are using that charting tool. So here ROC we refer to say is that it is a rate of change. अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेशन होता था तो ऑफ कोर्स आरओसी विल बी मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, मगर टेक्निकल एनालिसिस में आरओसी स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द आरओसी, मींस आरओसी में क्या होता है। It is one of the simplest formula in the domain of oscillator indicators it is having, ROC. The very simple calculation is that let's say 10-day ROC.
10 दिन पहले स्टॉक का भाव क्या था, आज क्या भाव है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस। लेट्स से 10 दिन पहले कोई स्टॉक का भाव 10 रुपया था, 100 रुपया था, और आज के 10 दिन के बाद में, आज के दिन में स्टॉक का भाव 110 रुपया है, तो उसकी आरओसी हुई आपकी 10% की। सिंपल एज दैट। ये प्राइस ने इतना इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में इतना उसने मूव किया हुआ है। तो दैट इज व्हाट एन आरओसी इज ऑल अबाउट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैंने फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव टू द लॉन्ग टर्म थिंग, कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक प्रोफाइलिंग हो गया। कोई भी एक कंपनी है, थ्री इन इंडिया है, तो ये मेरा 750 स्टॉक का लिस्ट है। ये मेरे 750 स्टॉक का लिस्ट है। 750 स्टॉक क्यों? बिकॉज दिस इज द टोटल मार्केट कैप। लार्ज कैप, मिड कैप 250, स्मॉल कैप 250 एंड अ माइक्रो कैप 250। ठीक है, तो ये मेरा 750 स्टॉक का यहाँ पे वीडियोस मैंने बनाया हुआ है। हर एक स्टॉक की एक क्लासिफिकेशन दी हुई है। सो हियर आई हैव पुट इट द स्पाइडर कोड ओवर हियर, कि हाँ ये स्पाइडर का कोड है, ये कंपनी का सिंबल है। कंपनी स्ट्रेटेजिक इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से लार्ज कैप मिड कैप 250 की कंपनी है। राइट, लार्ज कैप। और जैसे हमने एमएससी की वेबसाइट इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आरओसी 9। मैं आपको ये एक्सरसाइज फिर से करके बताता हूँ। तो मैंने ये अपने एक्सेल शीट को और स्पाइडर के रिपोर्ट डिजाइनर को मैंने कैसे कनेक्ट किया हुआ है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये मैंने डेटा यहाँ से फैच किया हुआ है। तो अगेन लिटिल बिट ऑपरेशनल थिंग है, लेकिन 30-40 सेकंड का टाइम उसको मुझे लगता है पूरा शीट को अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा एक बेसिक मॉडल यहाँ पे तैयार है विद बेसिक इंफॉर्मेशन कि स्टॉक और इसके सेक्टर क्लासिफिकेशन। अभी मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू स्पाइडर। स्पाइडर में यहाँ पे आके मैं रिपोर्ट्स में आता हूँ। रिपोर्ट्स में आके मैं यहाँ पे रिपोर्ट डिजाइनर पे आता हूँ। राइट, दिस इज व्हाट द रिपोर्ट डिजाइनर दैट आई गॉट इनटू इट। तो रिपोर्ट डिजाइनर में आ गया। अभी वहां की जो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना यहाँ पे कंडीशंस बना के रखी हुई है। तो लेट्स से मैं लोड करता हूँ, और लोड में मुझे क्या चाहिए होता है कि मुझे आरओसी, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है कि इन आरओसी व्हाट आई वांट, कि मुझे देयर आर 5 डिफरेंट इंटरवल्स आ गए, शॉर्ट टर्म टू द लार्ज ट्रेंड। तो उसके 5 इंटरवल्स मेरे बने हुए हैं। तो आरएससी को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, पोजिशनल टर्म और इन्वेस्टमेंट, यानी 9 दिन, 27 दिन, 56 दिन, 108 दिन, मेरे मैंने अपना जो एक्सेल शीट पे जो मेरे स्टॉक्स हैं, तो वह यहाँ पे ही उसके हिसाब से मैंने अपना टोटल मार्केट कैप यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसको जस्ट मैं रन कर देता हूँ। तो ये मेरे 750 स्टॉक का लिस्ट चुटकियों में मेरा आ गया यहाँ पे। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेल शीट में अपना डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया 14 और सेव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा 14 आरओसी यहाँ पे ओपन हो गया है। ये लिस्ट मैंने ले लिया। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक यू टू द वेरी बेसिक इंटीग्रेशन, तो आप मॉडल्स के साथ थोड़ा सा ज्यादा डीपली कनेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ पे बेसिकली बाद में एक्सेल का एक फीचर होता है। इस पर्टिकुलर चीज में आपको दो चीज की जरूरत होगी। एक तो एक्सेल शीट का थोड़ा सा नॉलेज, आई एम नॉट अ प्रो इन एक्सेल शीट, लेकिन हाँ जो मुझे बेसिक यूटिलिटी चाहिए होती है अपना मॉडल बनाने के लिए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रेज्ड माय कैपेबिलिटीज फॉर दैट। तो आरओसी मैंने यहाँ पे कर दिया। लेट्स से दिस इज व्हाट द एक्स लुक फॉर्मूला दैट आई एम यूजिंग। ये मेरा स्पाइडर की फूड से लुकअप करता हूँ। स्पाइडर की कोड से मेरा एक्स लुकअप हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट। स्पाइडर का जो ये कोड मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि ना काफी बार आपके नाम चेंज होते हैं, कंपनी के नाम चेंज हो जाते हैं, या फिर उनकी कैटेगरीज भी चेंज हो जाती है। कि कोई स्टॉक एक नॉर्मल कैटेगरी में होता है, तो उसके बाद में वो बीक्यू कैटेगरी में जब भी आ जाता है, तो स्पाइडर में नाम अंडरस्कोर बाद में बीक्यू करके आता है। तो मैं नाम से मैं सर्च करूंगा तो वो नाम से नहीं होगा। तो इसके लिए मैं स्पाइडर का कोड हमेशा यहाँ पे यूज करता हूँ। एंड दिस इज व्हाट द मेरा डेटा यहाँ पे फैच हो गया। नाउ पूरे का पूरा मेरा यहाँ पे कॉपी मैंने कर लिया 750 स्टॉक लिस्ट पे। at this particular point I'm explaining, so शायद इसने 1 मिनट जितना टाइम लिया होगा, but in my practice it takes less than 1 minute।
तो ये मैंने डेटा यहाँ पे मैंने अपना अब बना लिया. Now it gives you the measurable outputs. Measurable output in the sense that कि आपको ये बता देता है कि लेट्स से कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है. तो मैंने लेट्स से कि मैक्रो सेक्टर है, तो मैक्रो सेक्टर से मैं अभी कौन सा चीज आउट परफॉर्म कर रही है. तो this full went for the IT sector. तो यहाँ पे मेरा एक IT सेक्टर का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है. ये बेसिकली मैंने क्या किया था कि ये मेरा एवरेज ऑफ 9 days है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक यू दिस प्रीडिंग टाइम. मैंने टाइम पीरियड कौन सा लिया हुआ है. मैंने 9, 27, 54, 108, 216 का ये मैंने आरओसी लिया हुआ है. स्टॉक का भाव 9 दिन पहले क्या था और आज क्या है. स्टॉक का भाव 200 दिन पहले क्या था और आज क्या है. तो 200 दिन के पहले से आज ये स्टॉक 25% से नीचे में है. तो आई कैन से दैट इंडिया एक नेगेटिव रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम उसने दिया हुआ है. तो ये टाइम फ्रेम लगाने का पर्पस क्या था. 9 रिप्रेजेंट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म. ये आपका शॉर्ट टर्म, ये आपका मीडियम टर्म, पोजिशनल टर्म एंड इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ. तो शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक प्राइस ने किस तरीके से बिहेव किया हुआ है, तो उसका एक लिस्ट मेरे पास आ जाता है. राइट. तो अभी ये चीजें हो जाने के बाद में क्या होता है कि नाउ आई एम एबल टू गेट द रेडीमेड आउटपुट. तो जब भी मुझे यहाँ पे मैं मैक्रो में जाता हूँ, तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दैट भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज डाइवर्सिफाइड इन कमोडिटीज का पार्ट काफी अच्छा है, काफी अच्छा चल रहा है. इन दिनों में इंडस्ट्री, कमोडिटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छे चल रहे हैं. 54 दिनों में इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सर्विसेज काफी अच्छे चल रहे हैं. तो ये सारी चीजें सेम चीज मैक्रो में ये चीजें अच्छी चल रही हैं, ये चीजें खराब चल रही हैं. सेक्टर में ये चीजें रियलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटल, डाइवर्सिफाइड, हेल्थ केयर काफी अच्छा चल रहा है. ये सारे सेक्टर्स काफी खराब चल रहे हैं. तो ये एक चीज थी यहाँ पे. राइट. नाउ ये तो सारा एक कहते हैं ना कि एक एक शीट पे मुझे देखना पड़ता है. लेकिन बाद में मैंने क्या किया कि ये जो मेरा टॉप टेबल है, ये जो मेरा टॉप टेबल है, इसमें से कौन से नाम है जो काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं. तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था कि कोई स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म में अच्छा हो, लॉन्ग टर्म में खराब हो, या फिर कोई सेक्टर ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म में अच्छा हो और शॉर्ट टर्म में खराब हो. मुझे वैसा चाहिए था कि कौन सा सेक्टर ज्यादा कंसिस्टेंट रहा हुआ है अक्रॉस द टाइम. राइट. तो मैंने बाद में क्या किया कि यहाँ पे एक समरी मैंने बनाई अपनी, जहाँ पे मीन्स इफ आई हैव टू शो द अपर मैथ ऑफ इट. तो यहाँ पे सब कुछ था वैसे मीन्स इस वे पे मैंने अपने आप को रैंकिंग और सब काउंट किया हुआ है. जैसे कि डाइवर्सिफाइड है, सेक्टर की जो चार्ट है डाइवर्सिफाइड है, तो वो जो बुलिश टॉप है वहाँ पे डाइवर्सिफाइड कितनी बार रिपीट हुआ, बुलिश में वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो ओवरऑल मेरी रैंकिंग बन जाती है कि वो उसकी रैंकिंग 9 की आती है. फर्स्ट कौन है जस्ट देखते हैं. तो लेट्स से कि मेटल्स आर द फर्स्ट वन, कि वो 3 बार ज्यादा सबसे रिपीट हुआ है और अंडर परफॉर्मेंस में वो आया ही नहीं है. तो इसके बेसिस पे क्या हो जाता है कि मेरा यहाँ पे रैंकिंग बन जाता है कि हाँ मेटल्स सबसे टॉप रैंक में है, रियलिटी सेकंड रैंक में है, फाइनेंशियल मेरे थर्ड रैंक में है, केमिकल, टेक्सटाइल. इस तरीके से मुझे अपनी एक रैंकिंग यहाँ पे देखने मिल जाती है. तो ये एक रैंकिंग जब भी मुझे देखने मिल जाती है, सो एज आई से दैट कि हम मार्केट में सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वी हैव टू ऑप्टिमाइज आवर टाइम एज वेल. तो ये मुझे कहाँ ना कहाँ पे एक इंडिकेट करता है कि भाई आपको अभी मेटल सेक्टर्स पे जाके देखना है, आपको अभी रियलिटी सेक्टर में जाके देखना है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी जाके. नाउ वैसे जो मेटल सेक्टर है, तो मेटल सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, वैसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे. तो बाद में मैंने मेटल सेक्टर का एक समरी बनाया हुआ. तो जैसे कि मैं अगर समरी में आता हूँ तो टोटल मार्केट कैप, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेटल एंड माइनिंग स्टॉक है मेरे. तो मेटल एंड माइनिंग के मेरे 23 स्टॉक्स हैं. तो 23 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स हैं डाइवर्सिफाइड मेटल के, कुछ मेरे फेरस स्टॉक्स हैं, कुछ मेरे मेटल स्टॉक्स हैं, कुछ मैंने मिनरल मिनरल्स के स्टॉक्स आ जाते हैं, कुछ मेरे नॉन फेरस के स्टॉक्स हैं. नॉन फेरस में भी मेरा ये एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सारे स्टॉक्स में. तो अभी ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग आ गया कि ओके फाइन मेटल स्टॉक्स अच्छा कर रहा है, मेटल स्टॉक्स के अंदर अच्छा कौन सा कर रहा है. कैन यू रोल योर आई बॉल एंड टेल मी दैट कि मेटल सेक्टर के, लेट्स कंसीडर दिस एज अ 9 9 वाला जो पार्ट है उसको ही आप कंसीडर करते हो. आई जस्ट वांटेड टू चेक योर आई बॉल सेटिंग्स कि आप क्या डिटेक्ट कर पाते हो उस पर्टिकुलर टेबल से.
सो नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि आपका मेटल चल रहा है, तो मेटल के अंदर आपका कौन सा सेक्टर चल रहा है? कैन यू टेल मी बाय लुकिंग एट दिस टेबल? I think little bit alignment, camera alignment is not there. So there is zinc and ferrosilica manganese by Mr. Kamraj, zinc by Sheetal Ashar, sponge iron, minerals. तो यहाँ से 23 स्टॉक है, 23 स्टॉक्स हैं, 23 स्टॉक्स में अभी आपकी मोमेंटम कहाँ पे है? सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट। अदरवाइज क्या होता है कि भाई फेरस सेक्टर, सबसे पहले क्या होता है कि मेटल स्टॉक चल रहा है, थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है तो वी कैन क्लासिफाई दैट कि हाँ फेरस मेटल चल रहा है, नॉन फेरस मेटल चल रहा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। who has heard about that कि there is a ferro and silica magnesis करके भी एक यूनिवर्स है? who has thought that कि भाई यहाँ पे एक स्पॉन्ज आयरन करके भी एक कैटेगरी बनती है? So when you look at this particular thing, तो तभी आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती है कि ओके फाइन, दिस इज व्हाट फेरस एंड सिलिका मैग्नेसिस स्टॉक है, आपका स्पॉन्ज आयरन है, आपका जिंक का एक स्टॉक है। So these are the particular stocks which are into the movement. Now again, if I have to ask a little bit one more complicated questions, कि आपको ये तो पता चल गया चलो कि फेरस एंड सिलिका मैग्नेसिस में स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी मोमेंटम है, लेकिन फेरस एंड सिलिका मैग्नेसिस किस कंपनी में आते हैं? कौन सी कंपनी है ये? एनी गेस? कौन सी कंपनी है फेरस एंड सिलिका मैग्नेसिस की सेगमेंट? अगर तो नो, अगर आपको पास करना हो तो पास कर दीजिएगा, बट लेट मी नो दैट कि व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस। तो बेसिकली ये भी एक तरीका होता है, मीन्स इट इट हैपेंस इन अ ड्यूअल वे। तो थोड़ा सा आपको अपना एक जो थॉट होता है, जो आपका एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको थोड़ा सा आपको फॉर्मुलाइज करना होता है। उसके लिए आपको डेटा लगता है। तो डेटा आई एम फेचिंग फ्रॉम द जो स्पाइडर का रिपोर्ट डिजाइनर का फॉर्मेट है, वहां से मैं इसको फेच कर रहा हूँ। एंड यू जस्ट शो द टाइम कि विद इन द 1 मिनट मैंने अपना डेटा फेच किया, एंड दिस इज व्हाट द आउटकम दैट हैज स्टार्टेड टू हैपन। कि ये मैं डिटेक्ट कर पाता हूँ कि मार्केट का भी फ्लेवर क्या है वैसे, राइट? तो लेट्स से फेरस एंड सिलिका मैग्नेसिस नहीं पता है, एंड काफी सारे स्टॉक्स मुझे भी नहीं पता होता है, सारे स्टॉक्स स्टॉक का लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है। तो यहाँ पे बाद में मैं देखता हूँ कि फेरस एंड सिलिका में कंपनी कौन सी है। तो अगेन बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सब करके रखा हुआ है। आई अंडरस्टैंड दैट विद अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये जो मैंने मॉडल ओवर द मंथ्स बनाया हुआ है, इट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी टू कन्वे टू यू। बट मैं इसका एक जस्ट आपको एक थॉट देना चाहता हूँ कि आपका कुछ एक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए, और उसका एक रिलायबल रिसोर्स से आपको एक डेटा मिलना चाहिए। तो व्हेन दिस टू थिंग्स कंबाइंस, तो आपका एक स्ट्रेटेजी बन जाता है वैसे। तो मैंने ये सारी चीजें क्यों बनाई थी? बिकॉज एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि मेरे लिए एज अ मीडियम टर्म ट्रेडर मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि मैं सेक्टर को परखूं, कि सेक्टर को मैं जानूं कि कौन सा सेक्टर मूवमेंट में है। तो दिस इज व्हाट द वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट आई क्रिएट। नाउ लेट्स से फेरस एंड सिलिका मैग्नेसिस। तो फेरस एंड सिलिका मैग्नेसिस में मैं देखता हूँ कि कौन सा है। तो ओके फाइन, तो ये मेरा फेरो एंड सिलिका मैग्नेसिस का एक नाम आ गया है। तो वंस आई क्लिक ऑन दिस, देन आई अंडरस्टैंड दैट कि ओके फाइन, ये एक इंफा करके एक स्टॉक है, या फिर मैथन एलॉय करके एक स्टॉक है, जो एक कंपनी है जो इस पर्टिकुलर निश सेगमेंट में है, और यहाँ पे मोमेंट है। दोनों की दोनों कंपनी माइक्रो कैप में है। तो यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एज आई वाज सेइंग दैट कि सबसे पहले आपको रीचार्टिंग काम करना होता है। इट इज नॉट सो दैट कि आपने कोई स्टॉक ध्यान में आया और सीधा आपने उसका चार्ट खोल लिया, चार्ट को एनालाइज कर लिया।
इट इज इन अ पार्शियल वे। सबसे पहले मैंने देखा कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा स्ट्राइक सेंटर में है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लुक इनटू इट। अभी तो मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ, बट दिस आर द कपल ऑफ द थिंग्स आर दैट। नाउ अभी की जो मैंने एक्सरसाइज की, तो दिस इज व्हाट मैं प्री चार्टिंग हुआ कि मुझे चार्ट कौन सा देखना है, एंड चार्ट कौन सा देखना है इन लिटिल बिट मैथोलॉजिकल वे, कि मैं आज कहाँ पे हूँ। तो देर इज मैंने आज इंफा के स्टॉक में आ रहा हूँ, तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ प्री इंटीग्रेशन इज देयर कि मेटल के स्टॉक्स के मूवमेंट में, मेटल के स्टॉक के अंदर ये पर्टिकुलर एक निश सेगमेंट है, वो एक मोमेंटम है। उसके बाद में मैं उसको चार्ट को लेता हूँ एंड देन चार्टिंग पार्ट होता है। डोंट थिंक सो कि मैं आपको चार्टिंग सिखा पाऊँ, एज यू आर ऑल यूजिंग द स्पाइडर, सो ऑफ कोर्स यू विल बी हैविंग द स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग। बट मेरा कहना का पर्पस ये था कि इतने सारे स्टॉक में से हम यही सेगमेंट पे हम क्यों बात कर रहे हैं, इंफा के स्टॉक पे हम कैसे आए, मेथन एलोय के हम स्टॉक पे कैसे आए। तो देन नाउ यू कैन यूज योर थिंग्स, लेट्स से कि मैंने इंफा का ओके फाइन, स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखता हूँ, तो सिंस 2010 से लेके 2023 तक स्टॉक हैज स्टक इन वन पर्टिकुलर रेंज, यानी आपका 13-14 सालों का एक ब्रेकआउट आपको देखने मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। वीकली चार्ट में मैं देखता हूँ तो स्टॉक प्राइस कहाँ ना कहाँ पे अपने जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे आके रुका हुआ है। प्रीवियस सपोर्ट लेवल पे आने के बाद में प्राइस हैज फॉर्म द बेस एंड देन इट स्टार्टेड टू पिक अप ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा सा डेली चार्ट पे करेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, 1715 के लेवल पे चल रहा है। अगर ये स्टॉक फिर से एक सपोर्ट लेवल पे आ जाता है, लेट्स से तो 17-18 670-80 के रेंज में आ जाता है, और यहाँ से फिर से ये स्टॉक पिकअप करता है, दैट बिकम्स सम सॉर्ट ऑफ मीडियम टर्म आइडिया फॉर, राइट। तो दिस इज हाउ द थिंग्स। तो ये सिंपल सी चीज थी, आरओसी, रेट ऑफ चेंज, कि एक पर्टिकुलर डेट पे स्टॉक का भाव क्या था और आज के पर्टिकुलर डेट पे स्टॉक का भाव क्या है। लेकिन बेस्ड ऑन दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ द एंटायर मॉडल हैज बीन स्ट्रक्चर्ड ऑन दैट। और यही नहीं, इसके साथ में मैंने वॉल्यूम को भी कपल ऑफ डेज बैक मैंने वॉल्यूम को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ था। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल मार्केट शीट में आता हूँ, देन आई एबल टू सी दैट कि 1 डे डिवाइड बाय 5 डे एवरेज वॉल्यूम, ये भी आप स्पाइडर से कर सकते हो कि 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम क्या है। आई थिंक देयर इज वन पर्टिकुलर टूल जो मैंने एक स्पाइडर सपोर्ट की टीम है, उन्होंने मुझे सिखाया हुआ था ये चीज। तो अर्लियर आई मुझे लगा था ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक फीचर दिया हुआ है, एवरेज ऑन OHLC VUT। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना एक फिक्स कर सकता हूँ, एवरेज ऑन वॉट, एवरेज ऑन वॉट। तो यहाँ पे उन्होंने हाई लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक टेबल बनता है कि मुझे कितने टाइम फ्रेम का एवरेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम का, यहाँ पे इफ आई टाइप टू वीक, तो वीक का मेरा वॉल्यूम बन जाता है कि 5 दिन का ये वॉल्यूम। तो मैंने इसके बेसिस पे फिर से एक मॉडल बनाया वॉल्यूम के परस्पेक्टिव से, कि 1 डे डिवाइडेड बाय 5 डे का एवरेज वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पे मेरा प्राइस का तो मोमेंटम है, लेकिन हाउ इज माय प्राइस की तो मोमेंटम है, लेकिन मेरी वॉल्यूम की एक्टिविटी क्या है। तो वॉल्यूम की एक्टिविटी उसके हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे कम रही है। स्पॉन्ज आयरन इट इज लिटिल बिट ठीक है, 1 के लेवल पे है। जिंक का मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ठीक है। एक्चुअली वॉल्यूम की प्रोफाइल की एक्टिविटी अभी सिर्फ मुझे देखने जाऊं तो मेटल्स में इतनी एंकरेजिंग नहीं दिखने मिली हुई। बट मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा प्राइस का ही रहेगा। अगर प्राइस भी है और मेरा वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्ट कर लेता है, तो दैट इज लाइक चेरी ऑन द आइसक्रीम। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वे में आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्ट द थिंग कि कौन सा सेक्टर में किस तरीके से चल रहा है। नाउ आई थिंक विल टेक अ लिटिल बिट 5 मिनट्स मोर टू एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल्स। उसके बाद में मैंने एक मॉडल बनाया था, लेट्स से पिवोट लेवल पे, कि मार्केट कहाँ पे है वैसे, मार्केट के जो स्टॉक्स हैं वो कहाँ पे बने हुए हैं। इस सारी चीजों के लिए मैंने स्पाइडर टीम को काफी तंग किया हुआ था कि दिस इज हाउ फीचर को किस तरीके से देखना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है। बट यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ एक मॉडल्स मैं बना पाया हूँ। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया हुआ है कि डाइवर्सिफाई, लेट्स से कि इंडस्ट्रियल है, तो उसमें से 29 उसमें 29 स्टॉक है। तो वो 29 की स्टॉक कहाँ पे प्लेस्ड है, क्या वो मेरे स्टॉक R1 R2 के बीच में है,
क्या वो मेरे स्टॉक आर मीन्स पीवोट लेवल से रेजिस्टेंस 1 के बीच में, रेजिस्टेंस 1 से रेजिस्टेंस 2 के बीच में, रेजिस्टेंस 2 से रेजिस्टेंस 3 के बीच में। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड दैट कि अभी तक मार्केट का जो मेजर कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ ना कहाँ पे यहाँ पे है, बिटवीन S1 टू R1, बिटवीन P1 टू R1। जब भी मार्केट का मेजर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होता है ना, R1 से लेके S1 तक, आई अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज फेज में है। जब भी मेजर कॉन्सेंट्रेशन मेरा यहाँ पे ज्यादा होता है कि R1 के ऊपर, देन आई अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट की मोमेंटम पॉजिटिव में है। जब भी मेजर कॉन्सेंट्रेशन R1 के नीचे होता है, देन आई अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में कुछ एक नेगेटिव मोमेंटम बनी। तो ये पिवोट लेवल पे मैंने जस्ट एक अपना एक मॉडल बनाया हुआ था, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट कि वेयर द मार्केट स्टैंड्स आउट। उसके अंदर भी कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो काफी ज्यादा यहाँ पे कहाँ पे प्लेस्ड है। तो लेट्स से कि आईटी, जैसे आपने भी बताया मुझे कि आईटी का 29% ऑफ स्टॉक्स आर अबव द R3 लेवल, तो वो एक परफॉर्मिंग चीज में है। डाइवर्सिफाइड आईटी चलो हम सबको पता होता है, लेकिन डाइवर्सिफाइड किसको पता होता है कि यहाँ पे 50% ऑफ द स्टॉक, हालांकि स्टॉक का काउंट बहुत कम है, लेकिन डाइवर्सिफाइड करके एक सेगमेंट है वो काफी अच्छा कर रहा है। कौन से खराब है, तो यहाँ पे मैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि सर्विसेज है जो थोड़े से S2 S3 के लेवल के नीचे आ रहे हैं। कौन से ज्यादा खराब हुए, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाव बना हुआ है। सो आपका आइडिया थोड़ा सा फॉर्मलाइज्ड वे में एंड डेटा पॉइंट्स दोनों को चीजों को कंबाइन होता है, तो एक मॉडल बनता है हमारा। So this is what the things that I wanted to present. What I can do is that ये मेरे proprietary model है, so sorry for that कि ये सारी चीजें मैं share तो नहीं कर सकता आपसे, but I am quite active on my LinkedIn profile. कि let's say कि मैं अपनी LinkedIn profile पे काफी एक्टिव होता हूँ। तो ये इसकी जो समरी होती है मैं काफी बार शेयर करता हूँ वैसे। तो लेट्स से कि कपल ऑफ डेज बैक अगर कुछ मुझे एक अपडेट देखने मिला था, तो ये कुछ मेरे केमिकल्स, आप में से किसी ने बताया कि केमिकल स्टॉक्स आपके मूवमेंट में है, तो मैंने पूरा कमोडिटी सेगमेंट का एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे रखा हुआ था। तो बेस्ड ऑन दैट वन कैन क्लासिफाई कि हाँ केमिकल्स में, लेट्स से कि केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल है, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल में आपकी डाइस एंड पिगमेंट्स के स्टॉक में थोड़ी सी मोमेंटम है, पेट्रोकेमिकल्स में तो कुछ कुछ आपको just for your you can remain your touch as well. Of course, we never promote some sorts of advisory kind of thing, but हाँ educational content के लिए इस particular link से आप connect हो सकते हो. This is from my end. आपके साइड से कुछ queries होती है, I tried my level best to respond on that. Yes. तो रिपोर्ट डिजाइनर इज अ वेरी मच डायनामिक। ज्यादातर मेरा भी केस क्या रहा हुआ था कि आई हैव यूज्ड द स्पाइडर फॉर द चार्टिंग पर्पस अ लॉट, लेकिन हमने उस पूरे एंटायर सॉफ्टवेयर का कहते हैं जो एसेंस काफी हद तक मैंने काफी तक हद तक नहीं पकड़ा हुआ था। आई डोंट नो अबाउट अदर पार्टिसिपेंट्स, मैंने इसको चार्टिंग के पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखा हुआ था, बट देन देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ रिपोर्ट डिजाइनर जो मैं अभी काफी अच्छे से यूज कर रहा हूँ। देन देयर इज वन थिंग दैट इज व्हाट क्वेरीज का पार्ट मैं अभी भी इतना यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई लिमिटेड नॉलेज, बट एज आई सेड कि फिर से मैं आई विल ट्राई टू लर्न द थिंग्स फ्रॉम सपोर्ट में। मुझे टेक्निकल क्वेरीज में भी अभी थोड़ा सा एक्सटेंसिवली काम करना है। यस, सो दिस इज फ्रॉम माय एंड, ओपन मींस ओपनिंग द फ्लोर फॉर द क्वेश्चंस इफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। टाइम पीरियड फॉर अ पीवोट, मैंने क्या किया हुआ है कि वीकली की पीवोट लेवल मैप्ड अगेंस्ट द डेली प्राइस। तो ये चीजें मुझे वैसा नहीं चाहिए, आई एम नॉट एन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, तो मैंने वीकली को पीवोट लेवल लिए हुए हैं और मेरा डेली का प्राइस कहाँ पे फिट होता है वो मैंने सीखा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज वीक ऑन वीक बेसिस पे मेरी चलती रहेगी। तो इफ आई हैव टू शो द बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द पीवोट, तो लेट्स से कि ये तो चलो आउटपुट आ गया, लेकिन इसके पीछे काफी सारे कैलकुलेशंस हैं वैसे, राइट। ये मेरा बेस फाइल और लेट्स से कि ये फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है 3M इंडिया,
तो ये मेरे वीकली, ये मेरा करंट मार्केट प्राइस है, डी का करंट मार्केट प्राइस, ये मेरे वीकली पिवोट लेवल्स हैं। तो वीकली पिवोट लेवल्स में से वो कहाँ पे फिट हुआ, तो इट इज बिटवीन द S1 पिवोट लेवल से S1 के बीच में। तो बाद में सबका समरी यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट करता है। जब भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो देयर आर आइदर टू थिंग्स, या तो मैं बहुत अच्छे Yes, से sir. So एक्सप्लेन we कर have a पाया lot of हूँ। questions coming in. There is one particular member asking whether how to select a particular stock in an outperforming sector. ओके, और परफॉर्मिंग सेक्टर में कैसे करें, ठीक है। There is a one more tool or the screen that I have used, which is what a ratio chart analysis. So मैं इसका just एक gist आपको दे रहा हूँ. You can note down the things. And if you want to customize the things, of course you can catch the means spiders supporting for that. तो मैंने दूसरा एक स्क्रीन बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि आउटपरफॉर्मिंग कहाँ पे है। ये सारे एक्शन शीट मॉडल मेरा है, आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, लेकिन लेट्स से कि आपको थोड़ा सा स्पाइडर पे ही आपको कैसे आप कर सकते हैं इन सारी चीजों को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि मैंने अपनी एक स्क्रीन बनाई हुई है। तो दिस स्क्रीन लुक्स लाइक दिस। इज दिस स्क्रीन विजिबल टू ऑल? Yes, sir. राइट। तो यहाँ पे क्या है कि रेशियो चार्ट, अगेन आई विल नॉट गेट इनटू द एजुकेशनल साइड कि रेशियो चार्ट क्या होता है। आई एम गोइंग टू गिव यू द डायरेक्ट आउटपुट ऑफ इट। तो ये मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने अपना इंडेक्स सेट कर लिया। लेट्स से में जाके आई सेट माय इंडेक्स। तो दिस व्हाट माय इंडेक्स मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ये मेरा ये आ गया। सेटिंग्स में जाके आई सिंक दिस क्लिक, क्लिक सिंक मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो व्हाट इज दिस इज, जस्ट अ मोमेंट जी। तो हाँ, तो यहाँ पे दिस इज व्हाट निफ्टी 50, मैंने अपना बेस लेवल माना हुआ है निफ्टी 200। तो न्यूमरेटर इज अ निफ्टी 50, डिनोमिनेटर इज अ निफ्टी 200। ये मेरा क्वार्टरली चार्ट है, ये मेरा मंथली चार्ट है, ये मेरा वीकली चार्ट है, और ये मेरा डेली चार्ट है। तो मैंने अपना इंडेक्स का यूनिवर्स तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है। देन आई क्रॉस ऑन, मैं जस्ट अपने डाउनवर्ड एरो को मैं प्रेस करते जाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि निफ्टी 50 क्वार्टरली चार्ट पे ठीक ठाक चल रहा है, मंथली चार्ट पे थोड़ा सा डिप होने लगा है क्योंकि मिड कैप सेक्टर में comparatively काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया होता है इस टाइम पे। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे ऊपर जा रहा है। व्हाट आई वांटेड टू सी इज दैट कि अगर मुझे कुछ पॉजिटिविटी चाहिए होती है तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम वहां पे एक राइजिंग स्लोप मुझे देखना मिलना चाहिए। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी डिड वेल ऑन द क्वार्टरली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट में काफी अच्छा किया हुआ है। सीपीएससी इंप्रूवमेंट किस चीज पे है वैसे। तो आई कैन कीप ऑन, जब भी मैं अपना एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं अपने डायरी एंड पेन साथ में लेके बैठता हूँ कि हाँ सीपीएससी में कुछ मोमेंटम है, आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, एंड आई वांटेड टू हैव द डायरेक्शन और एंड ऑल द चार्ट शुड हार्प ऑन द सेम स्ट्रीम, कि हर एक चार्ट का टोन मेरा सेम होना चाहिए। क्वार्टरली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे नीचे और डेली चार्ट पे ऊपर है, इट डजंट मेक अ सेंस, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं गोल्ड देख रहा हूँ, गोल्ड इज कम्प्लीटली आउट परफॉर्मिंग अक्रॉस द टाइम, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली। तो मुझे कुछ व्यू बनाना होता है, तो ये चीज मुझे चाहिए होती है फॉर द पॉजिटिविटी। डिफेंस काफी अच्छे से चला हुआ है वैसे, तो इट इट हैज शोड यू सम सॉर्ट्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस अगेंस्ट द निफ्टी। प्राइवेट बैंक परफॉर्मेंस में मंथली चार्ट पे इतना कुछ खास नहीं है, तो ये थोड़ा सा जब देयर इज व्हेन यू आर इन डाउट स्टे आउट। तो जब भी इनडेसिसिवनेस होता है तो देन इट डजंट मेक अ सेंस। कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्म नेगेटिव व्यू बनता है क्योंकि अक्रॉस द टाइम फ्रेम, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, दे आर अंडर द डाउनवर्ड स्लोप। वंस आई फाइंड दैट हाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल से मेरे वीक हैं, तो नॉट नेसेसरी दैट कि हर एक स्टॉक आपका वीक होगा। तो बाद में मेरा नेक्स्ट वे क्या होगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल का मेरा सेक्टर डिवाइडेड बाय कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर इटसेल्फ। तो वहां पे मैं एक बार जाके देखूंगा कि कौन सा स्टॉक्स में वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। तो ये सारे थोड़ी से आपको स्क्रीनिंग प्रोफाइल कर लेता है। व्हेन यू आर लुकिंग एट अ टेक्निकल चार्ट, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रिस्क टू रेशियो देख के आप अपना ट्रेड इनिशिएट करते हो। बट दिस इज द वन वे दैट आई नॉर्मली लुक एट।
कि इस तरीके से स्ट्रेंथ वाइज मुझे पता चलता है. So this is one screen that I also use quite well. Yes. Any other questions? Is it possible to share the 750 stock list with the categories, or The you audience can members. Yeah. sorry, means there is one question that came into the chat box, so I am writing, means I am speaking for all the participants. As I said, that proprietary model है, तो मैं वो share तो नहीं कर पाऊंगा, and you can do partially as well. या तो फिर थोड़ा सा मेहनत करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए उस पर्टिकुलर स्क्रीन में से, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपको एक कैटेगरी मिलेगी वैसे. तो जैसे कि आप निफ्टी इंडेक्सेस के वेबसाइट में आप जाते हो, तो व्हाट कैन हैपन कि लेट्स से कि आप निफ्टी के इंडेक्सेस के वेबसाइट में हो, आपने यहाँ पे निफ्टी 500 का क्लिक किया वैसे, तो निफ्टी 500 का आपने क्लिक किया और यहाँ पे इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो एट वन क्लिक आपको निफ्टी 500 का लिस्ट भी मिल जाएगा और उसका एक सेक्टर मिल जाएगा आपको. तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 360 डिग्री है, तो उसका आपको ये एक सेक्टर आपको मिल जाता है इंडस्ट्री वाइज. तो ये एक मैक्सिमम क्लासिफिकेशन आप रेडीमेडली कर सकते हो. Right. Yes, other questions? One of the questions, so how do we use this data of strong sector, macro or micro, and then use it for swings for few weeks or few months? Should I repeat? Okay, I got your question. So basically, as the theme of this particular session was that if, what I was trying to say is that if automobile आपका चल रहा है, normally what you say is that कि आपका finance, as I raised the questions, कि आपका IT चल रहा है या फिर आपका financial services चल रहा है. Financial services is a macro indicator. लेकिन with such a classifications क्या होता है कि you are able to understand the micro part of it. So let me tell you about the financial services. लेट्स से कि फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर आपके 114 स्टॉक है. 114 स्टॉक में से बैंक के आपके 35 स्टॉक है. बैंक में अदर आपके जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं उसके 6 स्टॉक हैं, प्राइवेट बैंक आपके 16 स्टॉक हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक के आपके 11 स्टॉक है. तो पिछले 9 दिनों में आपका जो मोमेंटम जहाँ पे बिल्ड हुआ है, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट कि ये आपका अदर बैंक यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की मोमेंट में आपकी यहाँ पे रही हुई है. तो फाइनेंशियल सर्विसेज इज अ मैक्रो, बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन उसके अंदर आपका बैंक आता है. बैंक के अंदर आपके 35 स्टॉक है, 35 स्टॉक के अंदर का ये आपका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपकी मोमेंटम रही हुई है. आपका कैपिटल मार्केट आ गया, तो कैपिटल मार्केट के अंदर आपका अभी कौन सा स्टॉक चल रहा है. तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट कैपिटल मार्केट अगेन इज इन लाइक अ वेरी बिग सेक्टर. बिग सेक्टर के अंदर आपका स्टॉक ब्रोकिंग एंड अलाइड सर्विसेज आपका चल रहा है. तो उसके बाद में मैं स्टॉक को रिप्लेस करता हूँ, पीछे से देखता हूँ कि स्टॉक ब्रोकिंग में कौन सी कंपनीज है, रेशियो चार्ट एक बार देख लेता हूँ एंड देन आई लुक एट द टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स रिस्क कवर रेशियो, ये सारी चीजें देखिए, ये एक ट्रेड आउट आइडेंटिफाई. राइट. There is one question that comes in, how to place the ROC on the chart. It is very simple actually. जैसे हम स्टडीज में जाते हैं कि आपने यहाँ पे स्टडीज में किया एंड लेट्स से आरओसी आपका आ गया, रेट ऑफ चेंज परसेंटेज है, तो आपने यहाँ पे पैरामीटर कोई सिलेक्ट कर लिया एंड आई आपने ऐड कर लिया, तो ये आपकी आरओसी चार्ट पे आ गई. वो तो एक स्टडी है, विच इज वेरी सिंपल थिंग टू ऐड ऑन द चार्ट. होप आई हैव जस्टिफाइड योर टाइम because I understand that weekend mornings are very much precious to everyone. So for the spider and participants, I have justified that time. Yes, we can launch the poll for a feedback. Yes. So please, means we spider team and I have given you the time for I think 1 hour. So it's your time for 30 seconds, your time to give us. Do let us know your feedback. So it will help the spider team and me to improvise the things further. So this is not my LinkedIn profile. So where you can stay connected. Fine. So can I conclude the session?
Yes, sir. Okay, so this is from me, and thank you so much, Spider team, for this opportunity and all the participants for your precious time. Thank you so much.